Welcome to my channel Lilanika Technical Education. I am Ranika Tambuli. Welcome all of you to watch this video to join my channel. In this video, we are going to discuss about sorting and deleting and renaming indexing on the data frame. If you want to sort your columns value in the data frame in Python Pandas, then how can you do this? Let's start. इस वीडियो में हम शॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे। अगर हमें नीड है कि किसी पर्टिकुलर डेटा को शॉर्ट करना है, असेंडिंग, डिसेंडिंग या किसी ऑर्डर में सेट करने की नीड है, then we can do this easily with the help of this function, sort value function. Let's start. Sorting refers to the arranging the values in a particular order. If you want to arrange your values in the data sets in the data frame, then you can do this with the help of sort value function. Okay, and now the values can be sorted on the basis of a specific column or columns. If you want to sort a specific column or a set of columns, then you can do this very easily with the help of this method, with the help of this function. Values can be set ascending or descending. Let's see the syntax of this function is with the help of data frame name, data frame object, and the dot followed by the dot operator. Sort function is called here. Okay, sort values function is called here. You can see data frame dot sort values. You have to write the full name of this function to sort the values in your particular column. And after this, set the axis value also for this. If axis is equals to 0, then the columns will be sorted according to index level. Okay, and axis is equals to 1. If the parameter value axis is equals to 1, then the values will be sorted in the data frame according to column wise. हम आगे इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यूज जो है शॉर्टिंग परफॉर्म होती है। इससे पहले कुछ पैरामीटर्स डिस्कस कर लेते हैं। इस फंक्शन के पैरामीटर में सबसे पहला पार्ट आता है कॉलम्स। आप उन कॉलम का नेम यहाँ पास कीजिए फंक्शन में जिसे कि आप शॉर्ट करना चाहते हो। देन उसके बाद में ऑर्डर बता दीजिए, आपको असेंडिंग में सेट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। दिस इज़ योर चॉइस दैट इन विच यू ऑर्डर यू वांट टू सॉर्ट योर values for the data frame. Then after this axis, if you assign the x 0, then it will be sort in at the index level. Then if you assign the axis value to 1, then it will be sort the column values according to column headings. ये सारी चीज़ें हम आगे प्रैक्टिकल में भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी इन प्लेस कीवर्ड, इन प्लेस की बात करूँ तो इफ़ यू वांट टू मेक द चेंजेस इन द ओरिजिनल डेटा फ्रेम, आप अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में भी चेंजेस करना चाहते हो तो इन फ्रेम का क्या होता है, यूज़ होता है, इन प्लेस का यूज़ होता है। इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू सेट किया, इन प्लेस इज इक्वल्स टू अगर आपने ट्रू वैल्यू सेट कर दी फंक्शन में तो उससे क्या होगा, इफ़ यू मेड एनी चेंजेस इन योर data frame during using this function, then it will be reflected in the original CSV file also. ओरिजिनल जो आपकी फ़ाइल होती है, ओरिजिनल जो आपका डेटा फ्रेम होता है उसमें उसका रिफ्लेक्ट आपको दिखाई देगा, इफेक्ट आपको दिखेगा। देन काइंड, यू कैन ऑल्सो सेट द काइंड विच टाइप ऑफ शॉर्टिंग यू वांट टू अप्लाई। आप किस तरह की शॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हो, क्विक शॉर्ट लगाना है आपको, मर्ज शॉर्ट या हीप शॉर्ट, दीज आर द टाइप्स ऑफ द शॉर्ट। एंड दिस जो पैरामीटर है ये काइंड, दिस इज़ एन ऑप्शनल, दिस इज़ योर चॉइस, यू वांट टू शॉर्ट, नॉट कंपल्सरी। ना एनी पोजीशन जो होती है वो नैन वैल्यूज़ के लिए होती है। if you want to set the nen values at the first or at the last, then you can set these to first and last keyword. default जो रहता है अपना last से, कि कहीं कोई blank value है हमारे data frame में तो वो इससे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे या लास्ट नंबर पे सेट कर सकते हैं उसको। यू कैन सेट दिस easily. We will discuss it further in the practical example. Here you can see the example of this code that how can you sort a particular column. First we want to access that file at which we want to perform the sorting. Okay, in which we want to perform the sorting. Then you can see that the import pandas as pd, सबसे पहले pandas library को हमने यहाँ क्या किया, import किया। इसके बाद में हमने df ऑब्जेक्ट, df डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है जिसमें कि रीड कर रहे हैं
स्टूडेंट वाली CSV फाइल को, student.csv, स्टूडेंट्स नाम से एक CSV फाइल एग्जिस्ट है यहाँ पे, उसे हमने रीड किया. देन आफ्टर दिस वी आर यूजिंग हियर, हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं क्या, हेड फंक्शन टू access only top 5 rows of this file. I don't want to access all the rows in this file. I just also want to access only topmost 5 rows. मुझे सिर्फ टॉप जो 5 rows है बस वही डिस्प्ले करवानी है. तो इसके लिए मैंने क्या किया, head फंक्शन को कॉल किया. Okay, if the head function is blank then it will be the default value for this 5, दैट इज़ 5. यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 5. यानी कि जो 5 रोज़, जो टॉप मोस्ट रोज़ है स्टूडेंट वाली फ़ाइल की, वो यहाँ एज अ आउटपुट आप देख सकते हो. ठीक है. इसके बाद जब हमें शॉर्टिंग अप्लाई करनी है या शॉर्ट फंक्शन हम लगा देंगे तो किस तरह का आउटपुट आएगा ये आप लोग देखेंगे अभी. ये देखिए, df डॉट शॉर्ट वैल्यूज़, यहाँ इसी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट पे शॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन कॉल किया. देन आफ्टर दिस आई असाइन द नेम ऑफ द कॉलम ऑन विच आई वॉन्ट टू अप्लाई शॉर्टिंग. जिस कॉलम पे मुझे शॉर्टिंग अप्लाई करनी है, मुझे ID को शॉर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ ID कॉलम पास कर दिया, नेम ऑफ द कॉलम. एंड असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स सेट किया. असेंडिंग पैरामीटर यूज़ होता है ऑर्डर सेट करने के लिए. इट इज़ योर चॉइस दैट यू वांट टू शॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. यहाँ असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स सेट किया, मीन्स आपकी जो वैल्यूज़ हैं ID कॉलम की वो सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू में ये जो आपका रिकॉर्ड है डेटा फ्रेम का, इस फाइल का, वो सेट होके आएगा. इस तरह का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ हो. अब इसके बाद में आगे हम देखते हैं, इसका जुपिटर में प्रैक्टिकल देख लेते हैं किस तरीके से होता है. इससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नाउ ऑन दिस जुपिटर नोटबुक यू कैन सी दैट द सेम कोड, आई एम गोइंग टू रन दिस कोड हियर, दैट import pandas as pd. then after this I'll access this file student.csv. then जब मैं इसको रन करूँगी तो इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा ये आप लोग देख सकते हो. इसको रन किया हमने. ठीक है. देन हेड फंक्शन यूज़ किया, df डॉट हेड. इसके बाद में जब ये कोड रन होगा तो इसका आउटपुट जो है कुछ इस तरीके से आएगा. टॉप मोस्ट 5 रोज़ ऑन ऑफ दिस फाइल विल बी एक्सेस्ड हियर. यहाँ पे टॉप 5 रोज़ जो हैं वो यहाँ एक्सेस हो गई. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट, now you can see that the 5 rows and 26 column exist in this file. Okay, now I am going to apply short values function to this. अब मुझे यहाँ पे short values function apply करना है. ID कॉलम पे मैंने कॉलम का नेम यहाँ सेट कर दिया ID. ओके. इसके बाद ascending is equals to मैंने सेट किया false. then एन पोजीशन फर्स्ट दी है कि जो भी अगर मान लीजिए ID कॉलम में कोई नल वैल्यू है तो वो फर्स्ट पोजीशन पे सेट हो जाए. ऑर्डर जब सेट ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में जब ये कॉलम सेट होके आए तो उसमें क्या हो, नैन वैल्यूज़ फर्स्ट पोजीशन पे प्रेफर करे. किस तरीके से ये आपको आउटपुट मैं बताती हूँ. मैं रन करके आई विल रन दिस कोड एंड शो द आउटपुट ऑफ दिस. ये देखिए ID का जो कॉलम है आपके शॉर्ट हो गया. अब आप लोग देखो जो नैन वैल्यूज़ थी NaN, ये जो नैन लिखा हुआ आ रहा है, ये नैन क्या चीज़ होता है, नैन यहाँ होता है नॉट अ नंबर. मान लीजिए अगर किसी रिकॉर्ड में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो वहाँ नैन कीवर्ड यूज़ होता है. ठीक है, डिस्प्ले होता है अपने आप से. और हमने ये पोजीशन सेट कर दी इसकी कि भाई ID वाले कॉलम को हमें सेट करना है तो इट विल बी सेट एट दी first place if this field values contain nan values. Okay, if the values in this field at anywhere is blank then it will be set to nan and it will be prefer the nan values the first position. आप लोग देख सकते हो यहाँ इस फाइल में CSV फाइल में जितना भी रिकॉर्ड था वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. और इफ़ ही want to access only topmost 5 rows or limited rows then we have to use head function. Okay, short values function. If you want to short
मल्टीपल कॉलम्स एट वंस, अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स को शॉर्ट करना है, जस्ट लाइक दिस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, दीज आर द 2 कॉलम्स ऑफ योर फाइल विच आई एम गोइंग टू शॉर्ट, जिसे मुझे शॉर्ट करना है। दोनों कॉलम्स के नेम मैंने दिए, बाय कीवर्ड का मैंने यहाँ यूज़ किया। ओके, बाय जो पैरामीटर है उसका यूज़ करो। देन यू कैन असाइन द मल्टीपल नेम ऑफ योर कॉलम विच यू वांट टू शॉर्ट। देन इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। इन प्लेस का ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि इन प्लेस का यूज़ करते हैं इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन योर ओरिजिनल डेटा फ्रेम। इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस, आप चाहते हो कि यहाँ पे जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं ड्यूरिंग द कोडिंग, then this will be reflected back to your original CSV file, then you will need to set here in place is equals to true. Okay, then after that you can see the output of this code. What is this? You can see that the first column and last name, first name and the last name, both columns are set at the in the descending order. आप लोग देख सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी वैल्यूज़ जो है वो सेट हो गई हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, तो ओवरऑल हमने इस वीडियो में बात की कि किस तरीके से शॉर्टिंग अप्लाई की जाती है सिंगल कॉलम पे, मल्टीपल कॉलम पे, और रीडिंग कैसे होती है CSV फाइल की, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। हेड फंक्शन का यूज़ भी यहाँ क्लियर होता है। If you have any query, then mention in the comment box and I definitely try to solve your query. And if you like the video, then subscribe my channel and please press the bell icon to get the notification about upcoming further videos. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है, नो डाउट कमेंट में लिखिए और हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।